بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ NN24 نیوز HD کے ساتھ میں ہوں نائلہ نصیر۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ خبر شامل کریں گے نارووال سے۔ نارووال میں ڈینگی کے حوالے سے اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر سید حسن رضا کی ہدایت پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل غلام سرور کی زیر صدارت انسداد ڈینگی کے حوالے سے اجلاس کا انعقاد کیا۔ فوکل پرسن DHO ڈاکٹر محمد طارق، نمائندہ عالم ادارہ سے ڈاکٹر عاقب حنیف کے علاوہ زراعت، لائف اسٹاک، انفارمیشن انڈسٹریز، پاپولیشن ریسکیو، گورنمنٹ ٹو سول ڈیفنس انڈسٹریز، ماحولیاتی تعلیم، ہائر ایجوکیشن، ضلع کونسل، میونسپل کمیونٹیز، فوڈ اتھارٹی، اسپیشل ایجوکیشن، ہائر بلڈنگز وغیرہ نے شرکت کی۔ اجلاس میں رواں ہفتے کے دوران کیے جانے والے انسداد ڈینگی اقدامات پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ ADCG نے اس موقع پر انسداد اقدامات کا جائزہ لیتے ہوئے متعلقہ افسران کو ڈینگی سرویلنس سرگرمیوں کو مزید تیز کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ ہاٹ اسپاٹ کو مسلسل روزانہ کی بنیاد پر چیک کیا جائے گا۔ ننکانہ صاحب میں ڈسٹرکٹ ہسپتال میں لوٹ مار کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈسٹرکٹ ہسپتال ننکانہ صاحب میں کرپشن اور لوٹ مار کا سلسلہ جاری ہے۔ غریب مریضوں کی کرپشن اور لوٹ مار پر ویڈیوز سامنے آ گئی۔ ایک لیڈی ڈاکٹر سرکاری ہسپتال میں پرائیویٹ کلینک کی طرح فیس لے کر چیک کرنے لگی۔ عوام اور شہری اس کرپشن پر سراپا احتجاج بن گئے۔ تفصیلات کے مطابق ڈسٹرکٹ ہسپتال ننکانہ صاحب میں چیک اینڈ بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے اور انچارج ہسپتال کی غفلت کی وجہ سے آئے دن مریضوں سے لوٹ مار کی ویڈیوز سامنے آنے لگی۔ ہسپتال میں سیاسی تقریروں اور ڈاکٹرز کی آپس میں پارٹی بازی کی وجہ سے وزیر اعلیٰ پنجاب کا عوام کی خدمت کے وین کو دھچکا، مریض خوار ہونے لگے۔ سرکاری ہسپتال سیاست بازی کا گڑھ بن گیا۔ میرپور خاص میں 3 روزہ پھولوں کی نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ میونسپل کارپوریشن میرپور خاص کے زیر اہتمام 67ویں سالانہ 3 روزہ پھولوں کی نمائش کا افتتاح ہوا۔ نمائش میں 200 سے زائد پھولوں کی اقسام رکھی گئی۔ نمائش کا افتتاح چیئرمین ضلع کونسل میر انور علی خان تالپر نے کیا۔ افتتاح کے موقع پر کمشنر فیصل احمد عقیلی، میئر میونسپل کارپوریشن عبدالرؤف اور ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر رشید مسعود خان اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ کوہاٹ میں RTO محمد شعیب نے مختلف اڈوں کا دورہ کیا۔ سیکرٹری RTO کوہاٹ محمد شعیب نے مختلف اڈوں کا تفصیلی دورہ کیا۔ سیکرٹری ٹرانسپورٹ خیبر پختونخوا مسعود یونس اور چیئرمین RTA کمشنر کوہاٹ سید معتصم باللہ شاہ کی خصوصی ہدایت پر سیکرٹری RTO کوہاٹ محمد شعیب نے مختلف اڈوں کا تفصیلی دورہ کیا۔ اس دوران انہوں نے اظہر معین، نور الزیب اور افریدی نے کرک اڈے میں صفائی کی صورتحال کا معائنہ کیا۔ معائنے کے دوران افریدی معیز اڈے کو ناقص صفائی اور غیر تسلی بخش انتظامات کی وجہ سے فوری طور پر سیل کرنے کا کہہ دیا اور قوانین پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے بھی کہا جا رہا ہے۔ نوکوٹ سے بتائیں کہ SHO کی تعیناتی کے بعد پریس کلب کا دورہ کیا۔ SHO اسلم جمالی کی نوکوٹ تھانے پر تعیناتی کے بعد پریس کلب نوکوٹ کا دورہ کیا۔ 2025 کے لیے پریس کلب نوکوٹ کے 9 منتخب عہدیداروں کو مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر ASI نبی بخش قرئی، پریس کلب نوکوٹ کے سرپرست اعلیٰ ڈاکٹر عقیل احمد آصف، سینئر نائب صدر ملک محمد اسلام، نائب صدر اقبال قائم خانی، جنرل سیکرٹری نوان وہاب، یوسف زئی اور دیگر بھی موجود تھے۔ ایک طویل عرصے کے بعد SHO اسلم جمالی کی نوکوٹ تھانے پر دوبارہ تعیناتی پر نوکوٹ تھانے کی حدود میں جرائم پیشہ سرگرمیوں اور منشیات کی فروخت کی روک تھام کے لیے سخت اقدامات اٹھانے پر زور دیا۔ SHO اسلم جمالی نے یقین دلایا کہ بہت جلد سماجی برائیوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ رائیونڈ سے بتائیں کہ رائیونڈ میں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ایک کیری ڈبہ برساتی نالے میں گر گیا۔ رائیونڈ روڈ قصور نزد کھارا موڑ پر ایک افسوسناک حادثہ پیش آیا ہے۔ کیری ڈبہ برساتی نالے میں گر گیا۔ یہ واقعہ ڈرائیور کی غفلت اور نیند آنے کی وجہ سے پیش آیا، جس میں موجود 10 افراد میں سے 8 شخص کو موقع پر ہی موت ہو چکی ہے اور 2 کو شدید زخمی حالت میں ڈسٹرکٹ ہسپتال قصور منتقل کر دیا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ شادی سے واپس رائیونڈ روڈ قصور کی طرف آتے ہوئے یہ واقعہ پیش آیا۔ مصطفیٰ آباد میں گرین اینڈ گرین شجرکاری مہم کا باقاعدہ آغاز کیا جائے گا اور ہزاروں کی تعداد میں پودے لگائے جائیں گے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عزیر اکبر کی اس رپورٹ میں۔ گرین اینڈ کلین گروپ مصطفیٰ آباد کی طرف سے ہم شجرکاری مہم 2025 کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ جو نیکسٹ اتوار آ رہی ہے 23 تاریخ کو، یہ پودے لگانے کا ہم نے پروگرام جو کیا تھا یہ 2023 مئی سے شروع کیا تھا اور الحمدللہ اب تک ہم تقریباً 20,000 کے قریب پودے لگا چکے ہیں اور یہ لگاتے رہیں گے۔ جو یہ موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں، پوری سردیاں نکل گئی ہیں، کوئی بارش نہیں ہوئی، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں۔ میری درخواست ہے مصطفیٰ آباد کے تاجر حضرات سے، سیاسی جو لیڈران ہیں اور عوام سے، زمینداروں سے کہ زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں، اپنے کھیتوں میں لگائیں، گھروں میں لگائیں، تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بہتری ہو۔ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں پریس کلب مصطفیٰ آباد رجسٹرڈ اور PHA قصور، یہ تینوں ہم مل کے یہ پودے جو ہیں لگا رہے ہیں۔ یہ ٹول پلازا للیانی سے لے کے قصور تک ہم نے پہلے پودے لگوائے ہیں
और आइंदा भी इंशाल्लाह ये हमारा प्रोग्राम जो है चलता रहेगा। दीपालपुर में कार और मोटरसाइकिल के दरमियान तसादुम हुआ। दीपालपुर के गुलशन फरीद खैरपुर स्टॉप के करीब कार और मोटरसाइकिल में तसादुम हुआ। 2 बच्चों में खातून समेत 4 अफराद जख्मी हुए। इब्तदाई तबीबी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों की शनाख्त अबैदुल्लाह रफीक वल्द मोहम्मद रफीक, जरीना जोजा इशफाक 30 साला, रिदा दफ्तर इशफाक 7 साला, उमर वल्द इशफाक के नामों से हुई। नारंग मंडी से बताएं कि गवर्नर पंजाब ने नारंग मंडी का दौरा किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की नारंग मंडी आमद हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक टिकट होल्डर चौधरी लियाकत अली के इंतकाल पर लवाकीन के गहरे रंज और गम का इजहार किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने नारंग मंडी में गुज़श्ता दिनों इंतकाल करने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर चौधरी लियाकत अली के लवाकीन चौधरी तहसीन रजा डोगरा, चौधरी अंसर अली डोगरा, डिवीजन सदर लाहौर PYO चौधरी मजहर अब्बास और दीगर भी मौजूद थे। अपनी दीगर टीम के हमरा स्पेशल ब्रांच के फील्ड ऑफिसर अंस अली मुगल ऑफ मुरीद के सिक्योरिटी ब्रांच और यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब नारंग मंडी के नुमाइंदे भी मौजूद थे। समुद्री में पुलिस और एंटी नारकोटिक्स की कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। समुद्री में पुलिस और एंटी नारकोटिक्स फोर्स की मुश्तरका कार्रवाई। तांदियावाला रोड पर दौरान नाका 6 मंशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए। मौके से भारी मिकदार में मंशियात और 2 गाड़ियां भी कब्जे में ले ली गयी। DSP समुद्री अरफानुल हक का कहना है कि हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई का अमल जारी है। खानपुर में बिजली पर लटकी केबल की तारें आवाम के लिए वबाले जान बन गयी। बिजली पोल पर केबल की लटकी तारें रिहायशियों के लिए वबाले जान बन गई। मैपको ने केबल ऑपरेटर को बिजली पोल से केबल की तारें खत्म करने के लिए 3 रोज का नोटिस जारी कर दिया। 3 रोज बाद केबल की तमाम तारों को कब्जे में ले लिया जाएगा। कानपुर के शहरी इलाकों में बिजली और केबल की तारों के बाद जमीन की सतह तक पहुँच गयी। SDO मैपको सिटी मलिक शौकत ने केबल ऑपरेटर्स को केबल की तारें खत्म करने के लिए 3 रोज का नोटिस जारी कर दिया। SDO का कहना है कि 3 रोजा बाद मैपको की बड़ी कार्रवाई होगी। बिजली पोल पर केबल की लटकी बेहम तारों को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना था कि शहरी केबल की तारों को हाथ ना लगाएं। केबल की बेहंगम तारें घरों के सामने लटकने लगी, जिसमें शदीद करंट होने के बायस किसी भी वक्त बड़े हादसे का बायस बन सकती है। कबीरवाला में सुथरे पंजाब मुहिम का आगाज कर दिया गया। सुथरा पंजाब प्रोग्राम को अमली जामा पहनाने के लिए मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से बाकायदा तौर पर अब्दुल हकीम में लोडेड रक्शे भिजवा दिए गए। इस मौके पर चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी राव अरशाद अहमद ने सिटी प्रेस क्लब जमूरी अब्दुल हकीम के नुमाइंदों ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि डिप्टी कमिश्नर खानेवाल के अहकामात की रोशनी में वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के वीन के मुताबिक शहरों गिरदोनवा के इलाके से गंदगी के ढेर कूड़ा करकट उठाया जाएगा। गलियों की मुकम्मल सफाई का प्लान भी तैयार कर लिया गया। कोटला मोहम्मद में हाई स्कूल की नई बिल्डिंग का इफ्तिताह कर दिया गया। कोटला मोहम्मद सिंध एजुकेशन फाउंडेशन और गजाली एजुकेशन सोसाइटी के इश्तराक से कायम फाउंडेशन स्टेट गजाली हाई स्कूल की नई बिल्डिंग का इफ्तिताह नवाबजादा मीर अनवर अली टालपर ने किया। इफ्तिताह तकरीब में डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल अब्दुल हादी दाऊद पोटा, सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के रीजन हेड अली मोहम्मद शहवानी, बैरिस्टर मीर हमजा टालपर, PP तालका सदर हाजी मोहम्मद रफीक, अल्लाह रखा चेयरमैन अली हसन कायम खानी और दीगर भी मौजूद थे। मैडम एडवोकेट नबीला अराई, कारी निसार अहमद अराई, प्रेम सागर समेत दीगर सियासी समाजी रहनुमाओं ने शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए नवाबजादा मीर अनवर अली टालपर ने कहा कि सिंध एजुकेशन फाउंडेशन और गजाली एजुकेशन सोसाइटी के इश्तराक से बनी इस खूबसूरत बिल्डिंग को देखकर बड़ी खुशी हुई। तालीम के मैदान में आप लोगों की खिदमत काबिल इस्ताइश है। डेरकी में पैका एक्ट कानून के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के कॉल पर डेरकी में पैका एक्ट कानून के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट डेरकी के सहाफियों की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। एहतजाज नेशनल प्रेस क्लब के चेयरमैन लाला कादिर भुट्टो की क़यादत में किया गया। एहतजाजी मुजाहिरे में नेशनल प्रेस क्लब के सहाफियों के साथ शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एहतजाजी मुजाहिरे में पैका एक्ट कानून के खिलाफ बैनर्स उठाए और शदीद नारेबाजी भी की गयी। पिंडी भटिया से बताएं कि पिंडी भटिया में इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। फेस्टिवल की तकरीब के मौके पर चलता झूला ट्रांसफार्मर पर जा गिरा। सुपीरियर कॉलेज में झूला गिरने से मुतअद्दिद तलबात जख्मी हो गए। कॉलेज इंतजामिया ने मामले को दबाने की कोशिश की। MS के मुताबिक तकरीबन 5 तलबात को अस्पताल लाया गया जो कि मामूली जख्मी थे। मुस्तफाबाद में 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 बदनाम जमाना मंशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए। 2580 ग्राम चरस बरामद की। बदनाम जमाना मंशियात फरोश मोहम्मद दीन उर्फ MDA करीबी अजीज थे। चौकी इंचार्ज बेदिया की बड़ी कामयाब कार्रवाई, अवामी हलकों की मुबारकबाद दी। DPO कसूर मोहम्मद ईसा खान के खसूसी अहकामात की रोशनी में चौकी बेदिया इंचार्ज तैनात होने वाले SI मोहम्मद अरशाद सुहेल की बड़ी कार्रवाई। चौकी इंचार्ज बेदिया ने खुफिया इत्तला पर छापा मारकर बदनाम जमाना मंशियात फरोश मोहम्मद दीन उर्फ MDA के भतीजे और भांजे को गिरफ्तार कर लिया। बेदिया का रिहायशी मोहम्मद मजीद उर्फ मजीदा के कब्जे से 1340 ग्राम चरस बरामद की। मंशियात फरोश ने बताया वो कलिया के रिहायशी मंशियात फरोश मोहम्मद तनवीर उर्फ भाई की चरस फरोख्त करता था। नसीराबाद में एडवोकेट की बाजियाबी के हवाले से एहतजाजी रैली निकाली गई।
नाफी शुदा गुमशुदगी नामंजूर वाइस फॉर मिसिंग प्रिंसेस ऑफ सिंध की कॉल पर नसीराबाद में पर्सन्स ऑफ सिंध की कॉल पर नसीराबाद में सकरन से लापता होने वाले एडवोकेट आमिर अली इमरानी की बाजियाबी के लिए ससी लोहार की क़यादत में और नोनारी मोहल्ले से ताल्लुक रखने वाले एडवोकेट कौमी कारकुन आमिर इमरानी और अमल समेजों के अहले खाना ने प्ले कार्ड उठाए हुए हैं और एहतजाजी रैली निकाली। इस मौके पर रहनुमाओं ने कहा कि ये कानून कहाँ से आया है, चादर और सरहद को भी मद्देनजर नहीं रखा जाता। आमिर इमरानी पेशे के एतबार से वकील हैं। फिरोजवाला में मुसाफिर बस और कैरी डब्बे में तसादुम हुआ। फिरोजवाला काला खताई रोड पर मुसाफिर बस और कैरी डब्बे में खौफनाक तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में 10 साला लड़की जाँ बाग हो गई, जबकि खातून समेत 8 मुसाफिर शदीद जख्मी हो गए। हादसे की वजह से लाहौर नारोवाल रोड दोनों तरफ से बंद हो गया। राजनपुर से बताएं कि राजनपुर में जाम इम्तियाज की सियासी इस्माई शख्सियत की मुलाकातों का सिलसिला जारी। तहसील रिपोर्टर NN 24 न्यूज जाम इम्तियाज से नंबरदार अल्लाह वसाया दरेशक की कहा मुलाकात हुई। जाम इम्तियाज से नंबरदार ठलकरामुल्लाह वसाया दरेशक ने मुलाकात की, जिसमें इलाकाई मसाइल और तरक्याती अमूर पर गुफ्तगू हुई। इस मौके पर जाम अब्दुल करीम जमाल दरेशक भी मौजूद थे। तहसील रिपोर्टर जाम इम्तियाज ने मसाइल को अहकाम तक पहुँचाने और हल करने की भरपूर ताउन की यकीनदहानी भी करवाई। नसीराबाद में शुजकारी मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया गया। नसीराबाद डिवीजन में मौसम बहार की शुजकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। कमिश्नर नसीराबाद डिवीजन मोइनुर रहमान खान ने कमिश्नर ऑफिस के अहाते में पौधे लगाकर इस मुहिम की बाज़ाब्ता शुरुआत की और इस मौके पर महकमा जंगलात के अफसरान समेत मुख्तलिफ सरकारी महकमों के नुमाइंदान भी मौजूद थे। कमिश्नर नसीराबाद डिवीजन मोइनुर रहमान खान ने शुजकारी मुहिम के दौरान कहा कि डिवीजन भर में 50,000 पौधे लगाए जाएंगे, जबकि 70,000 पौधे जिम्मेदारों, काश्तकारों और सरकारी दफातर में तकसीम किए जाएंगे। इस मुहिम का मकसद माहौलियाती आलूदगी के खात्मे और इलाके को सरसब्ज बनाना है। हाला में कॉटन फैक्ट्री में आग लगने का वाकया पेश आया। हाला में वंजीरी स्टॉप पे कॉटन की फैक्ट्री में आग लग गई। सिंध सरवरी एग्रो इंडस्ट्री कॉटन फैक्ट्री में पुरसरार तौर पर आग लगने से करोड़ों रुपए मालियत की हजारों मन कपास जलकर राख हो गई। इतलात के बावजूद फायर ब्रिगेड के अमले की देर से आमद के बायस कॉटन जलकर राख हो गई। फैक्ट्री के मालिक महेश कुमार ने तफसीलात बताते हुए कहा कि पुरसरार तरीके से फैक्ट्री में आग लग गई, जिसकी वजह से 5,000 मन की लगभग कपास जलकर राख हो गई। उसने कहा कि हालात सईदाबाद, बुटियारी और शहदादपुर के फायर ब्रिगेड अमले को बर वक्त ला देने के बावजूद फायर ब्रिगेड अमला 3 घंटे देर से पहुंचा, जिसकी वजह से बड़ा नुकसान हुआ है। जड़ावाला में उर्स से ज़ायरीन की वापसी का अमल शुरू हो गया है। हजरत सखी सरवर लखा दाता लाल वाला पीर का सालाना उर्स मुबारक 14 to 21 फरवरी तक गए हुए ज़ायरीन की वापसी का अमल शुरू हो गया। ज़ायरीन आज सुबह की अजान के साथ ही अपनी अपनी संगत के हमरा सखी सरवर दरबार से रवाना हुए और दरबार आलिया हजरत सुल्तान बाहू सरकार पर जुम्मत मुबारक की नमाज अदा करेंगे और फिर अपनी अपनी संगत के हमरा घरों के लिए रवाना हो जाएंगे, जिनमें हकीमुल्लाह रखी, तैयब वट्टू, रफी चौहान, रशीद कसानी, जहूर वट्टू, मोहम्मद वसीम, समाजी कारकुनान अहमद, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन मोहम्मद हबीब, मिर्जा मजीद वापसी की तरफ रवां दवा है। लियाकतपुर में उधार का 600 रुपए ना देना शहरी के लिए जुर्म बन गया और शहरी को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बिलाल जट से। जी बिलाल जट, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लियाकतपुर तरन्ना मोहम्मद पनाह में शहरी पर तशद्दुद की वीडियो वायरल होने का मामला। लियाकतपुर पुलिस ने मुतासरा शहरी की मदयत में मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। जवेद नामी शहरी ने जफर इकबाल नामी शहरी से 600 रुपये उधार लिए। 600 रुपये वापस ना मिलने पर जफर इकबाल ने साथियों के हमरा शहरी को कमरे में बंद करके तशद्दुद का निशाना बनाया और वीडियो बनाते रहे। वीडियो वायरल होते ही DPO रहीम जार खान और DSP लियाकतपुर हरकत में आते ही FIR दर्ज कर दी गई और उनमें से एक मुल्ज़म गिरफ्तार भी कर लिया गया। बाकी मुल्ज़मान को पकड़ने के लिए जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं। जी मैं गरीब बंदा थी, मैं मलिक जफर साहब को गया मड्डी अमजद तो बेचने खड़े मैं 6-7 उन्हें का देवना थे। मेरे को सदवा थे अंदर सामान कहने दी था, मेरे को कुत्ते मारे ने कमीज ला थे मेरे को जिन्हें आखने पहले पिछले बकाए मैं गत्ते छते चुनता हुआ मैं जेड़े वेले थी मैं तेरे को दे देता मलिक साहब हर बंदे को देने खड़े थे। मेरे को नहीं देता, मेरे को आखने पेशाब पी मैं कोट मार तो बाहर काट खड़े थे। क्या देने खड़े? अमजद आइस तो पाउडर भी देने खड़े थे। अमजद खां, मलिक जफर, अली ए जड़ा ना थे ते नशे 4-5 की है जी। मैं गरीब बंदा बग्गा मलांगे 2-4 बेहन जड़े बेहन घेनम ने को फोन दे जरिए थे कहीं में लादन कब्रस्तान को खड़ो, कहीं में लादन सड़क ते खड़ो, मड्डी देने खड़े, बिचेने खड़े, ब्लैकमेल करे। मैं गरीब बंदा थी, गत्ते चना थे सारे दी बोतल गत्ते चुनदा एक दाना पीना हूं जी पोत जवान है तौबा की दी गणा। मेरी वीडियो बढ़ाते ना, मेरे को पता नहीं लगे अमजद मलिक अमजद मेरी वीडियो बढ़ाना रह गया, मेरे को नहीं पता लग गया वो वीडियो बढ़ाते ना फेसबुक पे चला देते। सक्कर में क्रिकेट टूर्नामेंट में फाइनल कामयाबी हासिल कर ली गई।
संगरार गुलाम गांव में क्रिकेट टूर्नामेंट शाह लतीफ मॉडल स्कूल ठकराठो फाइनल में कामयाबी हासिल कर लिया गया। संगरार गुलाम गांव में सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के ताउन से क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों के 8 टीमों ने हिस्सा लिया। उनमें रेड सोलंगी टीम लाल मोहम्मद अबाड़ो, रेड सोलंगी टीम गुलाम गांव गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल, संगरार गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल, अक्सा मॉडल सेकेंडरी स्कूल और दीगर भी स्कूल शामिल थे। टूर्नामेंट के दौरान दिलचस्पी और सनसनीखेज मुकाबलों के बाद फाइनल मैच शाह लतीफ मॉडल स्कूल गवर्नमेंट हाई स्कूल संगरा के दरमियान हुआ, जिसमें शाह लतीफ स्कूल की टीम ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा करते हुए कामयाबी हासिल की और ट्रॉफी अपने नाम कर ली। लक्की यूनिवर्सिटी में शुजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। लक्की यूनिवर्सिटी में शुजरकारी मुहिम का आगाज किया। लक्की यूनिवर्सिटी में साइट इंचार्ज फसीउद्दीन खान की सरबराही में मौसम बरसात की आमद पर शुजरकारी मुहिम का आगाज हुआ और शुजरकारी हुई। इस मौके पर दिलनवाज वजीर और शरीफुल्लाह भी मौजूद थे। कराची में हेल्थ केयर कमीशन का नया सिस्टम मुतारिफ करवाया गया। कराची में हेल्थ केयर कमीशन का नया सिस्टम मुतारिफ हुआ। मलीर और जिला शर्की में हेल्थ केयर कमीशन के अफसरान की सरबराही में एक मुअज्जिम गिरोह सरगर्म हो गया। इस गिरोह में हेल्थ केयर कमीशन के अफसरान, जाली दवा साजी कंपनियों के मुलाजमीन और कुछ निजी अफराद शामिल हैं। हेल्थ केयर कमीशन की कार्रवाई के दौरान अताई डॉक्टर की सील की गई क्लिनिक से लाखों रुपए रिश्वत के एवज दोबारा खुलवा दी जाती हैं। अताई डॉक्टर को जाली दवायात लिखने और हर माह रिश्वत देने का पाबंद किया जाता है। हेल्थ केयर कमीशन के अफसरान और निजी अफराद जालसाजी कंपनियों से लाखों रुपए दीगर सहूलियात का मुतालबा करते हैं। सक्खर से बताएं कि सक्खर में डीआईजी सक्खर का नया इकदाम सामने आया। डीआईजी फैसल अब्दुल्ला चाचा का बड़ा इकदाम। डीआईजी सक्खर न सक्खर खैरपुर गोटकी जिला के अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया। समाजी बुराइयों पर गैर कानूनी सरगर्मियों की मुलविस पहले से एहलकारों में मुअत्तल होने वालों में तकरीबन 47 पुलिस अफसरान और एहलकार शामिल हैं। अब्दुल जब्बार मेमन, मुश्ताक जतोई, गुलाम मोहम्मद बुजदार हादी, बख्श मंजूर, हसनैन आगा, शाहनवाज मुगल शाह, मुगल सावन खावर और दीगर शामिल हैं। अकाउंट्स कमेटी चौधरी शेर गुल के ऑफिस में दोस्त अहबाब से मुलाकात हुई। मजीद तफसीलात जानते हैं जायज़िया से। जी जायज़िया, आगाह कीजिएगा। जी एमपीए चेयरमैन मॉनिटरिंग कमेटी मेंबर अकाउंट्स कमेटी पंजाब नवाबजादा चौधरी शेर अली से गली जागीर ऑफिस फतेहजंग में हल्के के अहबाब की मुलाकात। तशरीफ लाने वाले अहबाब ने ज़ाती और इज्तिमाई मसाइल से आगाह किया। हल तलब मामलात पर चौधरी शेर अली ने मौका पर ही मुतल्लिका अफसरान को हिदायत जारी की। हल्के के अहबाब ने गली जागीर ऑफिस में मीर नवीद सीनियर नायब सदर PMLN ज़िला अटक और पॉलिटिकल असिस्टेंट नवाबजादा चौधरी शेर अली को ज़ियारत से वापसी पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुबारक के लिए आने वाले तमाम अहबाब की मोहब्बतों का शुक्रिया। जायज़िया NN24 न्यूज़ पिंडीगेट। डेरा इस्माइल खान से बताएं कि सीनियर सहाफ़ी अब्दुल खालिक नामालूम अफराद की फायरिंग से शहीद हो गए। सदारती अवार्ड याफ्ता सीनियर सहाफ़ी अब्दुल खालिक कोचल खेल वजीर नामालूम अफराद की फायरिंग से शहीद हुए। पुलिस लाइन के सामने सुबह सवेरे नामालूम अफराद की फायरिंग से अब्दुल खालिक वजीर शदीद जख्मी हो गए। उन्हें फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर वो जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गए। वाक़ई के बाद इलाके में खौफ हिरास फैल गया। अजब के कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तहकीकात का आगाज कर दिया, ताहम तहाल हमलावरों की शनाख्त या गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। मोहम्मदपुर दीवान में उम्रे की सआदत हासिल करने के बाद दोस्त अहबाब की जानिब से मुबारकबादों का सिलसिला जारी है। मोहम्मदपुर दीवान में सदर प्रेस क्लब मोहम्मदपुर दीवान, सीनियर जर्नलिस्ट मोहम्मद नासिर मुफ्ती को इनकलाब प्रेस क्लब मोहम्मदपुर दीवान के अहदेदारों ने उम्रे की सआदत हासिल करने पर मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर सदर मोहम्मद आरिफ खान कशकूरी, चेयरमैन खादिम हसनैन जतोई, जनरल सेक्रेटरी मलिक शकील कादिर खोखर, वाइस चेयरमैन मलिक अब्दुल करीम दिलशाद और दीगर ने फूलों के हार पहनाए और नासिर मुफ्ती ने कहा कि मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हाजिरी कबूल फरमाए और तमाम मुसलमान भाइयों को गुंबद हिजरा की हाजिरी अता फरमाए। पसरूर में राना मशहूद अहमद खान की सियालकोट कैंट में आमद हुई। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान साहब की डेरा राजपूत हाउस सियालकोट कैंट आमद हुई। खादम तहसील पसरूर MP राना लियाकत अली साहब और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने इस्तकबाल किया। इस मौके पर चेयरमैन आसिफ इकबाल ऑफ मंडियाला, चेयरमैन राना सजाद ऑफ गुडगौर, चेयरमैन चौधरी आसिफ बाजवा ऑफ मनियाला, चेयरमैन मियां कैसर महमूद एडवोकेट ऑफ, चेयरमैन मियां तारिक एंड रिजवान कुरैशी भी मौजूद थे। पसरूर में मुगल कौम का सबसे बड़ा इज्तिमा मुनक्किद हुआ। पसरूर से मुगल कौम का सबसे बड़ा इज्तिमा गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का पीपल्स पार्टी और आल पाकिस्तान तंजीम मुगलिया कन्वेंशन में शिरकत हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वो जमात है जो अवाम के मसाइल को समझती है। पीपल्स पार्टी ने अपने साबिका इदारों में अवामी फलाह के लिए गिना कुदरत खिदमत सर अंजाम दी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में मुतअद्दिद और मजबूत करना मेरी तरजीह है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए गली गली और मोहल्ले मोहल्ले जा रहा हूँ और गिले शिकवे दूर करके एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करूंगा। मुझे यहाँ देखकर बड़ी खुशी हुई है कि बहुत बड़ी तादाद में मुगल बरादरी के लोग पीपल्स पार्टी से रहना मोहब्बत करते हैं। कराची से बताएं कि कराची में कार और मोटरसाइकिल में तसादुम हुआ।
बलोच कॉलोनी के करीब तेज रफ्तार कार की मोटरसाइकिल को टक्कर, सहाफी शाहिद कुरई और मोहम्मद हनीफ भुट्टो जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक कराची बलोच कॉलोनी के करीब पीछे से आने वाली तेज रफ्तार कार के टकराने के नतीजे में सहाफी शाहिद हसनैन कुरई और मोहम्मद हनीफ शदीद जख्मी हो गए। सहाफी शाहिद हसनैन की हालत तशवीशनाक होने के बाद उन्हें फौरी तौर पर जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया। दूसरी जानिब बलोच कॉलोनी थाने के SHO मजहर अली पंकू ने कार को अपनी तहवील में लेकर ड्राइवर समेत 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। फसरूर में एंटी करप्शन की कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन सियालकोट की कार्रवाई, रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों SI गिरफ्तार कर लिया। अरफान नामी SI ने शाकिर नामी शहरी से 40,000 रुपए रिश्वत वसूल की थी। फसरूर में शाकिर नामी शहरी की गाड़ी की सुपरदारी के उस रिश्वत तलब की थी। फसरूर में CO एंटी करप्शन ने सिविल जज के हमरा छापे मारकर थाना बलवार के SI को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN 24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।